धन्यवाद Thank you. उपसभापति। Question number 136, Honorable John Britas. Sir, question number 136. Mani Mantri ji, first supplementary. I'll request that be brief in questions, and for Minister also please be brief in reply. Sir, why is it that when it comes to me it's brief? To all. Yeah. To all. Sir, the answer given by the Finance Ministry is shockingly revealing. It shows the way in which our federal fiscal is managed. Sir, in 2 years' time, cess and surcharge collected by the center has almost doubled, sir. In 2 years' time, it has gone up to 7.0 lakh crore. No wonder the states are left to starve. My question to the Honorable Finance Minister, specific one, is it a fact that the 15th Finance Commission had recommended that the cess and surcharge should be made part of the divisible pool? If so, why is the Government of India not heeding on implementing the Finance Commission's recommendation? Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि सेस बहुत बढ़ गया है, सेस अनुच्छेद 270 के तहत संविधान के अनुसार लगाए जा रहे हैं और पिछली सरकार भी सेस सरचार्ज लगाती रही है। जो बढ़ने का सवाल है, जो बढ़ा हुआ है, उसमें आप देखें तो एक बड़ी मात्रा में जीएसटी कंपनसेशन है, जीएसटी कंपनसेशन है। और अगर जो सेस लगता है कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता के विकास के लिए खर्च हो रहा है और सेस का एक अपना मद होता है, उस मद में ही खर्च हो पाता है। जहाँ तक आपने कहा कि 15वां फाइनेंस कमीशन ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है विचार के लिए विषय में सेस के सरचार्ज को बांटना शामिल नहीं था। फाइनेंस कमीशन ने इस विषय पर कोई डिटेल रिकमेंडेशन नहीं की है। इसके उलट पूर्व की सरकारों ने भी ऐसी रिकमेंडेशन को फॉलो किया। धन्यवाद। Second supplementary. Sir, the ministry is saying that the Finance Commission hasn't given detailed recommendation. There is a specific recommendation as to this. I didn't say it is detailed. If it is specific recommendation, that is what pertains to my question. Sir, though it is not very satisfactory, I would urge upon the Finance Minister, Honorable Finance Minister to, explain to the House. Nevertheless, I am going to the second supplementary, sir. Please. Is it a fact that the states were not given the 41% of the gross tax revenue as recommended by the Finance Commission? And moreover, various assistance which were available to the states when the Planning Commission was there, as normal center assistance, special center assistance, center plan assistance were done away with. And the segregation of revenue as cess and surcharge have made the state finances precarious. In this context, I would urge upon and I would seek whether the Government of India would review its stand towards cess and surcharge. Thank you. माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखें तो मोदी जी की सरकार आने के पहले जहां लगभग 30% का ही हिस्सा राज्यों को जाता था, लेकिन मोदी जी चूंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के चिंताओं को ठीक से समझते थे और उनके आने के बाद अगर आप देखें तो पहले 14वें वित्त आयोग में 42%, अब 41% का शेयर राज्यों के साथ बंटवारा किया जाता है। जहां तक सेस और सरचार्ज का सवाल माननीय सदस्य ने कहा है, निश्चित तौर से अगर आप देखें कि जो एक विशेष मद में सरचार्ज लिया जाता है और वो मद योजनाओं के माध्यम से सभी प्रदेश में ही जाता है, सब जगह उसको आम जनता को ही दिया जाता है। संगीता यादव जी। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जीएसटी कंपनसेशन का कितना बकाया है और इसे कब तक दिया जाएगा? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जीएसटी कंपनसेशन जितना कंपनसेशन कोष में पैसा आता है सभी स्टेट को दिया जाता है। अभी अगर उत्तर प्रदेश का सवाल है तो 1214 करोड़ रुपया लगभग बकाया है। निश्चित तौर से भारत सरकार उसको देने के लिए तत्पर है। माननीय जवाहर सरकार जी। Cesses and surcharges have been converted into an alternate source of revenue. Why should the division not be formally announced between states and the center? It's an alternate source of revenue. Thank you. From Thank you. माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित सभी सेस को भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के संदर्भ में सबसे पहले संचित निधि सीएफआई में जमा किया जाता है। सेस को संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्य से शेयर नहीं किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त केंद्र सरकार
जो पैसे इकट्ठा करती है उस कहीं ना कहीं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकारों में खर्च करती है। आशीष चक्रवर्ती। Total amount of cess retained by the union government and not transferred to the designated reserve fund, sir. What is the amount of the benefits from all cesses devolved to the states in the past 5 years? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया। बैठ जाए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि ये राज्यों से शेयर नहीं किया जाता है और बाकी सदस्य कितने लोगों को लाभ पहुंचा, वो योजनाओं के माध्यम से देश के सभी राज्यों में उसका लाभ पहुंचाया जाता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 137 माननीय श्री संत बलबीर सिंह जी। चेयरमैन साहब, 137 सिर्फ आपका है। क्वेश्चन नंबर 137 माननीय मंत्री जी। आंसर इज लेड ऑन द टेबल। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सवाल पूछिए, आप पूछे पहला सवाल माननीय संत बलबीर सिंह जी। चेयरमैन साहब आपके माध्यम राਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ OTP ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। सवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें से बैंक के अल्टीमेट एंड तक यानी गरीब से गरीब लोगों तक, रूरल एरिया तक कैसा पहुँचे। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है ये लैंग्वेज के बारे में पूछा है। एज पर द बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर माध्यम से जो सर्कुलर है और बैंक बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से एवरी बैंक इज डायरेक्टेड टू हैव ट्राइलिंगुअल फॉर्म्स। डिपॉजिट करना फॉर्म्स है, डिपॉजिट करने का फॉर्म्स है, पैसा भरने का फॉर्म्स है, इवन पासबुक्स है। ये ट्रायल लैंग्वेज में किया है, जिसमें एक लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज रहती है। और अगर कोई बैंक नहीं कर रहे तो RBI के माध्यम से सडन विजिट भी हो सकती है और वो देख सकते हैं, और ये प्रोसेस चल रही है। इसके माध्यम से सभी लोगों को इनका फायदा मिल रहा है, और जिसका एग्जाम्पल है जो जैम ट्रिनिटी हो या जनधन अकाउंट हो, तो परकोलेशन इज गोइंग अप टू द पेरीफेरी। सेकंड, दूसरा सवाल। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ माननीय मंत्री। Bit more to the Honorable MOS's answer, and क्योंकि Honorable Member Sant Balbir Singh ji comes from Punjab, just want to say that this order and guidance given by RBI in 2015 itself is being followed by most banks of trilingual English, Hindi and a local language, relevant local language. 9 public sector banks have already fully complied with it. But 3, and I therefore understand where the minister, where the honorable member coming from Punjab has a concern. The 3 public sector banks which are in the process of doing it are Indian Bank, Punjab National Bank and Punjab and Sindh Bank. Because Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank probably are more widely prevalent in Punjab, he is expressing a genuine concern, but the work is in process. It will be done in Punjabi. Thank you. दूसरा सवाल पूछ। हमारा तो यही सी बात ठीक। थैंक यू। माननीय धनंजय महादिक। Thank you, sir. I would like to know from the finance minister through you, sir, as we all are aware that 80% of Indian population rests in rural India, sir. What are the steps taken by the government of India to provide quality services in rural periphery of India, sir? Thank you. धन्यवाद।
माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, ग्रामीण एरिया में अच्छी सी अच्छा बैंकिंग सेवा मिले, इसलिए बैंक करस्पॉन्डेंट्स रखे हैं जिनका दौरा 5 किलोमीटर तक रहता है। और मुझे बताने को इस सदन को हर्ष होता है कि इवन रूरल एरिया में 96.6% बैंक का कवरेज है जिसमें बैंक एक्टिविटी चलती है। उसी के साथ हम सभी लोगों को पता है जो जैम एक्टिविटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो सभी को मिलता है, मैं पर्टिकुलरली यहाँ नोट करना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, इसी के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को भी इनका फायदा मिलता है। उसी के साथ बैंक के माध्यम से अलग अलग पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम भी लिए जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि बैंक लिटरेसी के लिए नाबार्ड के माध्यम से पर्टिकुलरली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वहां नाबार्ड के माध्यम से वैन दिए जाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, जिनके साथ एक एग्रीकल्चर ऑफिसर रहता है, एक बैंक ऑफिसर रहता है। हर गांव देहात में जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो और डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, इसी के बारे में पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। माननीय शांता छेत्री जी। Thank you, sir. I would like to know from the Honorable Minister, how does the government plan to include more women in business correspondence network, considering only 10% of BC workforce is female? This question, madam, relates to regional languages in banking sector. So, if माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप। ऐसा माननीय सभापति महोदय, इसी के माध्यम से जो बैंक करस्पॉन्डेंट जो है, ऐसा कुछ सेक्स में कुछ डिवीजन नहीं रहता, मेल और फीमेल जो कुछ सिलेक्ट होते हैं उनको देते हैं। और कुछ स्टेट में बैंक सखी बोल के भी कुछ अपॉइंट किए हैं और बैंक सखी भी अच्छी तरह से पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी। Sir, I will certainly compliment the government for doing quite a bit of activities to improve financial inclusion. Sir, I have a specific question. Will the government consider opening up more brick and mortar branches? Because banking correspondent is good, but more brick and mortar branches. This question relates to regional languages in banking sector. In the tribal pockets of aspirational districts. Because, sir, in one of the intervention in the house, I had mentioned that. Mr. Sujit Kumar ji, this question relates specifically to regional languages in banking sector. Please, if you have any question, no, please. Another people will get. Now, question number 138, Dr. V. Sivdasan. 21. Mani Mantri ji. First supplementary, Sir, after the implementation of GST, state government are facing huge financial crisis because they are unable to change the tariff of tax, they are unable to change the method of tax collection, and the autonomy of the states in the taxation is the most valuable asset of the state. It has gone. That means the state financial stability has gone. Please question. It has created a new crisis. The major share of the financial assistance of the LSTD is received by the LSTDs from the question. Central government. Is the state government facing the crisis that will affect the LSTDs also? After the implementation of... Please put your question. I'm coming the question, sir. I'm coming the question. Coming. Local self-government also lost the their tax collection right in entertainment and this advertisement tax. So, sir, whether the union government will support the move to restore the autonomy of the Panchayati Raj institutions, specifically in the taxation on entertainment and advertisement tax collection. Before I invite for answer, मैं माननीय सदस्यों से एक मिनट, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे इसलिए आग्रह करता हूं क्योंकि कल अनेक वरिष्ठ मेंबर मिले हमें और कहा कि हमारे क्वेश्चन का मौका आ सकता था। कृपया सुनिश्चित करें कि क्वेश्चन पूछने वाले ब्रीफ हों और माननीय मंत्री भी जवाब ब्रीफली दें ताकि हमें मौका मिले। इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। इसलिए अनप्लेजेंट मैं रिमाइंडर करता हूं। प्लीज नो, यस टू ऑल प्लीज, नो टू ऑल। माननीय सभापति महोदय, जीएसटी एक्ट बनाते समय
15-16 से रेट में 14% हर साल ग्रोथ के हिसाब से नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। राज्य को रेवेन्यू तय किया गया था। इसमें हानि की स्थिति में केंद्र 5 साल तक क्षतिपूर्ति देती थी। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि प्रदेशों का भारत सरकार मदद नहीं करती है। अगर कोविड काल में भी अगर आप देखें तो कोविड काल में जब कंपनसेशन सेस इकट्ठा नहीं हो रहा था उस समय भारत सरकार ने 1,10,000 करोड़ 1,59,000 करोड़ ₹1 लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया लोन लेकर के राज्यों पे संकट ना आवे उस समय भी देने का काम किया है। और अभी 2022 में जून में जब समाप्त हो रहा है हमने जो अनुमान लगाया कि मार्च तक जो पैसा सेस इकट्ठा होगा उसका भुगतान कर दिया गया है। बाकी सेस के माध्यम से पूरे देश में अगर देखें तो 17,176 करोड़ रुपया बकाया है, जो कि बहुत से प्रदेशों से भी एजी रिपोर्ट नहीं आई है, उनका फाइनल हिसाब नहीं हो सकता है। जैसे जैसे एजी रिपोर्ट आएगी उनका भुगतान कर दिया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। My second supplementary, the state governments are spending major share of the expenditure in welfare sector like education and health sector. According to the reply to me in this house, in education sector, share of the state is 74% and the share of the union government is only 24%. In health sector, expenditure of the state is 60 to 70% and the share of the union government is only 30 to 40%. The state government are facing the shortfall or in revenue due to the discontinuation of the GDP. Sir, this is my question. So whether the government has the data of the states which have faced the shortfall of revenue, if yes, thank you. Kindly share the data to us. Thank you. This is my question, sir. Thank you. माननीय सभापति महोदय, सेस के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है उसमें शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी है। उससे कहीं ना कहीं सभी प्रदेश को जो उनका हिस्सेदारी होता है उसको देने का काम करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर अमर सर, प्लीज मैडम, प्लीज। 2022-23, education received more than 1 lakh crore like never before. So education has been given higher priority and we've given that kind of an allocation. And again, I humbly submit through you, sir, the question related to GST compensation, any number of questions, MOS and myself are willing to answer. But in the process of asking questions, sir, panchayats, let's remember, the Finance Commission actually has asked for devolution directly to local bodies. We have given that. Honorable Prime Minister, when he became Prime Minister, in his experience of Chief Minister, readily agreed to the 14th Finance Commission report. And in that, directly money goes to the local self-governments, local bodies, urban local bodies. They are now sitting on money which can be used for developmental expenditure. Other than that, any program which is being undertaken by the state government or the central government, through the cess that is being collected, sometimes much more than what is collected in the cess, central government is filling and giving for education, health, agricultural infrastructure, roads. All the cess are collected for a particular purpose. Each one is collected for a particular purpose. And that particular purpose is obviously served through the states. So I would humbly appeal to you, sir, cesses are being collected by center, no doubt. But they can't be kept by the center. It has to be immediately in that year be spent also on long-term projects, which happens only through the states. Obviously, cess and surcharges which are collected are going only to the states. Thank you. Dr. Amar Patnaik ji. Thank you, Chairman, sir. So through you, I would like to raise this question. The GST compensation for 21-22 in respect of Orissa is about 1,167.50 crores. For 2022-23, it's about 2,084.03 crores. So approximately 3,251.53 crores are pending. In the month of June and in the month of September, the state government had approached the central government. My question is, when can we expect to get this money? Thank you so much. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार कहीं न कहीं सभी राज्यों का 5 साल तक कंपनसेशन देने के लिए तत्पर है। और कहीं ना कहीं जो भी बहुत से प्रदेशों से एजी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए फाइनल हिसाब नहीं हुआ है। जिन भी राज्यों से एजी रिपोर्ट आ रहा है उसका हिसाब चुकता कर दिया जाए। माननीय सुशील मोदी जी।
माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कॉम्पनसेशन सेस को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो जो 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है उससे जो राशि प्राप्त होगी उसका क्या इस्तेमाल होगा, किस प्रकार से राज्यों को उस राशि से मदद की जाएगी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। पति महोदय, मैंने पहले बताया कि कोविड काल में जब सेस कलेक्शन नहीं हो रहा था तो उस समय भारत सरकार ने बाजार से लोन लेकर के कंपनसेशन उत्तर प्रदेशों को देने का काम किया था। वो कंपनसेशन से जो लोन लिया गया है उस लोन को भी चुकता करना है और उसका जो ब्याज है उसको भी चुकता करना है। जब तक वो चुकता होगा तब तक ये चलता रहेगा। माननीय पी विल्सन। I ask this question in Tamil. மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசுக்கு சேர வேண்டிய ஜிஎஸ்டி பாக்கி தொகை ரூபாய் 10,879 கோடி எப்பொழுது தருவீர்கள்? இது 2020 ஆண்டு முதல் 2023 ஆண்டு வரை உள்ள பாக்கி தொகையாகும். நன்றி, வணக்கம். Honorable member asked the question in Tamil. I like to reply. Incidentally, even in the Lok Sabha during the supplementary demand for grants, this question was raised. About 4,200 and odd amount for which... What is the question you would like to know? Yeah, the question was, yes, there is something like approximately 10,000 crores due on compensation cess grounds, GST compensation cess grounds for Tamil Nadu. And the honorable member is asking as to when I will give it all. The ministry will give it for them. First of all, sir, this 10,000 is an amount which I want to say cannot be treated as a due even if they have a number to say this is how it is. Because as regards 4,244 lump sum amount for which utilization reached only 10 days ago, I will have to double check on the utilization, and then the moment it's all done, it's cleared. But for 21-22, if I know right, the utilization certificate from Tamil Nadu has not yet come to us. Subject to correction, sir. I remember, and I'm saying from the answer I've given in the Lok Sabha also. And for the year 22-23, April 1st onwards till June when claims are being made, even for that the utilization certificate has not come. So strictly speaking, as of now, since we've cleared all the dues up to June somewhat, and about 17,000 crores is pending to be given, I will just say GST, details of GST compensation pending for June 2022 for Tamil Nadu is 1,200 crores. If I want to give it in decimals, I'll say 1,200.6148 crores only. So if utilization certificate from a particular state, any state be it, hasn't reached, that cannot be treated as a pending one. So I said I'll start with Tamil, but of course, because MPs wanted it in English, I said it in English. Sir, Lok Sabha ide kelvi kekkapattadu. Compensation says 10,000 கோடி பெண்டிங் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குன்னு. 10,000 கோடி எங்க இருந்து வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இப்ப வரைக்கும் நீங்க 4,000 சொச்சம் யூட்டிலைசேஷன் கொடுத்தது 10 நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த 10 நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்த அந்த யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட்டை ஒரு முறை நான் செக் பண்ணிட்ட பிறகு மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து உடனடியாக பணம் ரிலீஸ் ஆகும். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கொடுக்க வேண்டிய யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. யூட்டிலைசேஷன் சர்டிபிகேட்டை எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க கொடுத்து அனுப்பீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நாங்க கிளியரும் பண்ணுவோம். ஆனா குத்து மதிப்பா 10,000 கோடி அப்படின்னா என்கிட்ட அந்த மாதிரி நம்பர் இல்லை. நன்றி. Question number 139, Honorable Shri Kanak Medla Ravindra Kumar. Sir, question number 139. माननीय मंत्री जी. सभा पर रखा गया है. पहला supplementary. माननीय रविंद्र कुमार. From the perusal of the answer, it can be seen that the production of capacity, all the 4 revived plants have similar production capacity. I would like to know from the Honorable Minister whether there has been any substantial increase in the production capacity in all the revived plants, or their production capacity is still in the same what it was before the revival.
चेयरमैन सर, डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य का 4 फर्टिलाइजर कंपनी का प्रारंभ हो चुका है, रामागुंडम और गोरखपुर और सिंदरी और बरौनी का। तो चारों का सिमिलर मतलब 12.7 लाख मेट्रिक टन की क्षमता का हर सालाना करना है। तो उसी क्षमता के अंदर अभी काम चालू किया है। कुछ अपना कंपनीज जो स्टार्टिंग में चालू होता है तो कुछ टीथिंग प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी सॉल्व करके सालाना 12.7 के हिसाब से अभी चालू हो चुका है सब। Second supplementary. Sir, from the perusal of the answer, one can easily understand that the heavy cost has been incurred in reviving these 4 plants. I would like to know from the Honorable Minister, subsequent to the revival of these plants, whether import of fertilizers and urea has reduced to a considerable extent or not. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, प्लांट की लागत कोरोना के वजह से और कारणों की वजह से लागत तो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी माननीय सदस्य का जो यूरिया के ऊपर जो एक्सपेंडिचर के जो बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया का भाव बहुत अप डाउन होने के कारण देश के इंपोर्ट और गैस की इंपोर्ट की भी कीमत बढ़ने के वजह से किसानों को रेट के ऊपर ज़्यादा बोझ न बढ़े, किसानों को जो 260 रुपीस पर बैग देने का था, वही बैग में आज भी देश के किसानों को भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेट बढ़ने के वजह से बजट के अंदर उसके ऊपर खर्च की बढ़ चुकी है। धन्यवाद। माननीय अशोक कुमार वाजपेयी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये यूरिया फर्टिलाइजर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा सम्मानीय सदस्य ने पूछा है कि यूरिया फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्शन है कि नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूँगा, देश को भी बताना चाहूँगा कि यूरिया फर्टिलाइजर का कंजप्शन प्रति वर्ष देश में 325 से 350 लाख मेट्रिक टन होता है। 240 से 245 लाख मेट्रिक टन इंडिजिनियस प्रोडक्शन होता है। 70 से 80 लाख मेट्रिक टन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि देश में ही उर्वरक का प्रोडक्शन हो, यूरिया का प्रोडक्शन हो। इसलिए 5 प्लांट 2016 में रिवाइवल के लिए एक डिसीजन लिया गया। उसमें से 4 प्लांट, 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया, रामागुंडम और गोरखपुर राष्ट्र को समर्पित किया गया। सिंदरी और बरौनी दोनों का प्रोडक्शन चालू हो चुका है, थोड़े दिन में उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। और तालचर प्लांट है, उसका भी काम तेजी से चल रहा है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष ये बताना चाहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट किसानों के प्रति कमिटेड गवर्नमेंट है। फर्स्ट क्वार्टर 2022 और सेकंड क्वार्टर में फर्टिलाइजर की प्राइस एकदम बढ़ गई और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से एक डीएपी बैग की प्राइस 4000 रुपया हो गई और हम किसान को 1350 रुपये देते थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया, यूरिया की प्राइस भी वैसे ही बढ़ी, वो भी 4000 के नजदीक हो गई और वो हम 266 रुपीज में एक बैग देते हैं। यानी कि उस वक्त ये समय आया था कि क्या हम प्राइस बढ़ाए किसान के पर या तो सब्सिडी बढ़ाए। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने कहा हमें किसान के प्रति कोई बोझ नहीं डालना है, किसान को मदद करना है और इसलिए सालाना सवाल एक मिनट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए माननीय अध्यक्ष सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। माननीय मंत्री जी प्लीज। 1.25 लाख करोड़ की हमारी सब्सिडी थी, प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की सब्सिडी बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ कर दिया, किसान पर बोझ नहीं आने दिया और किसान को आज पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से हुआ। थैंक यू। माननीय अशोक कुमार वाजपेयी जी। माननीय अशोक कुमार वाजपेयी। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड गोरखपुर कारखाने में कुछ चलते हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है। इन 1 वर्ष में वहां से कितना उत्पादन यूरिया का हुआ है और मान्यवर इन चारों कारखानों के चलने के बाद कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है? मान्यवर दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है? अपॉर्चुनिटी मिले। माननीय वाजपेयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर प्लांट की
क्षमता है 12 लाख मेट्रिक टन की और 1 साल से वो कंटिन्यू चल रहा है। 6 लाख मेट्रिक टन से अधिक प्रोडक्शन उसका ऑलरेडी आ चुका है। बीच में उसकी एक सिस्टम होती है, 3 महीने के बाद एक उसको बंद करना पड़ता है, फिर चालू करना पड़ता है। नया प्लांट है और अभी रेगुलर चालू हो गया। धन्यवाद। और उसका ऑनरेबल जोस के मनी। So, fertilizer import from Russia have seen a sharp increase this year, making Russia India's top supplier. However, the Russian plan to make the export of fertilizer costly by setting export tax for all types of fertilizer at 23.5%, when the price is more than $450 a ton is worrying. My question to the government, how the government plans to ensure adequate fertilizer supplies to farmers and keep fertilizer price affordable amid rising global prices? Thank you. माननीय उपसभापति जी, सरकार का कमिटमेंट है कि किसानों को खाद मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। कैसी भी स्थिति इस बार हुई, देश के डेवलप्ड कंट्री में भी फर्टिलाइजर का रेशन से मिलना चालू हो गया था। दुनिया में फर्टिलाइजर नहीं था। वैसी स्थिति में भी देश में हमें फर्टिलाइजर की कमी नहीं रहने दी और किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध किया। दूसरा, किसान को सस्ता फर्टिलाइजर मिले और फर्टिलाइजर में इनोवेशन हो और अल्टरनेट फर्टिलाइजर भी उपलब्ध हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के ही साइंटिस्ट ने नैनो फर्टिलाइजर का आविष्कार किया, रिसर्च किया, उसका कमर्शलाइजेशन चालू हुआ और आज एक बैग नैनो यूरिया इक्विवेलेंट, एक बोतल नैनो यूरिया 500 ml नैनो यूरिया इक्विवेलेंट 1 बैग यूरिया। मैंने सभी सम्मानीय सांसदों को एक किट भेजी है। आप अपने अपने क्षेत्र में किसानों को दीजिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। वो इको फ्रेंडली है और वो जो केमिकल्स उसमें नहीं है और इसलिए केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करके प्रोडक्शन कम ना हो और किसान को सस्ता फर्टिलाइजर मिले। इसलिए नैनो यूरिया ऑलरेडी आ चुका है, नैनो डीएपी पर रिसर्च चल रहा है। ऐसे अल्टरनेट फर्टिलाइजर लाके किसान अपनी फसल भी बढ़ा पाए और किसान का खर्च भी कम हो और इको फ्रेंडली भी हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। धन्यवाद। सुलता देव। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर फॉर परमिटिंग में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में पहला जो यूरिया प्लांट बेस्ड ऑन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी वो हमारे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट की तालचर का है, तालचर फर्टिलाइजर प्लांट्स। ये बहुत दिनों से बंद पड़ा है। इसको अभी माननीय मंत्री बोल रहे थे कि काम चल रहा है, मगर हम 10 साल से भी अधिक हुआ यही सुन रहे हैं कि काम चल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि काम कब तक ख़त्म होगा और इसका बेनिफिट उड़ीसा की लोगों को मिलेगा, सारा भारतवर्ष में मिलेगा, क्योंकि वो जगह हमारा जो कोल गैसिफिकेशन से जो काम हो रहा है, यूरिया का उत्पादन हो रहा है, वो जगह कोल माइंस में भरा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया प्लांट में 70% उसका फीड गैस होता है या तो कोल गैस होता है। ज़्यादातर विश्व में प्लांट वो गैस बेस्ड प्लांट है। एक नया प्रयोग है क्योंकि देश में कोयला उपलब्ध है, तो कोयला का उपयोग करके कोल बेस्ड गैसिफिकेशन प्लांट तालचर में हम बना रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का प्लान है, ऑलरेडी गति से काम चालू हो रहा है। बीच में थोड़ा समय कोविड क्राइसिस की वजह से 1.5 साल तक काम थोड़ा सा रुका था, लेकिन हम उसको बहुत गति से काम आज के दिन में चालू कर दिया है। हमारा अभी आज के दिन में प्लानिंग है कि 2024 सितंबर तक हम ये प्लांट का काम पूरा कर देंगे और वहां से खाद्य उत्पादन होके इस क्षेत्र में मिलना चालू हो जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 140 माननीय श्री मुकुल वासनिक जी। मुकुल वासनिक जी, माननीय सदस्य, आपको रोज मौका नहीं मिल सकता, बाकी लोगों को मिलने दीजिए प्लीज। माननीय मुकुल वासनिक जी नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सर आंसर इज फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय उपसभापति जी, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां बीमा करते समय नागरिकों को अनेक प्रकार के शब्द वाक्य दिखाती हैं, परंतु जब कोई बीमा धारक अपने उपचार हेतु कोई दावा पेश करता है तो स्वास्थ्य कंपनियां
बीमा धारक के भुगतान में अनेक प्रकार की अड़चनें खड़ा करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या देश में स्वास्थ्य बीमा धारकों के दावों के सापेक्ष वास्तविक भुगतान की स्थिति अत्यंत कम है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बीमा धारकों के दावों के सापेक्ष 100% भुगतान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी? धन्यवाद। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी जो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड ये सवाल है और इनका सवाल इंश्योरेंस कंपनी को लेके है। तो जो भी प्रावधान रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो पहले बताए जाते हैं और उसके कंसेंट के आधार पर ही उन्हें वो इंश्योरेंस दिया जाता है। धन्यवाद। ऑनरेबल संतोष कुमार पी। Sir, thank you, sir. The Clinical Registration, Clinical Establishment Registration Regulation Act 2010 was a progressive legislation in accordance with the mandate of the Article 47. So I would like to know the status of the implementation of the said act. आदरणीय डिप्टी चेयरमैन सर, जैसे कि सवाल है हेल्थ डिजिटल मैनेजमेंट पॉलिसी और आदरणीय सदस्य का सवाल है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। सर, ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अलग अलग रूल्स जो है वो हर एक स्टेट को दिए जाते हैं। सर, स्टेट अपने हिसाब से उसे मैंडेटरी करते हैं, अदरवाइज स्टेट अपने भी खुद के बनाते हैं। सर, जैसा सदस्य ने चिंता जताई कि क्या ये फॉलो करते हैं कि नहीं, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो भी प्रावधान दिए हैं कि जैसे डॉक्टर्स का उस हॉस्पिटल के कुछ ऑपरेशंस है, कुछ प्रोसीजर्स है, उसका मैंडेटरी करना है, इसके रेट्स लगाना है। सर, ये सारे प्रावधान उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आते हैं और उसके तहत वो स्टेट उसे मॉनिटर करते हैं। सर, धन्यवाद। सर, हमारी भारतीय बहन ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भारत सरकार ने पास किया था और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सभी स्टेट गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी असेंबली से उसको पास करना होता है। कई स्टेट ने उसको किया है, कई स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, सभी और माननीय सम्मानीय सदस्य अपने अपने स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन कराए तो देश के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। माननीय राघव चड्ढा। सर, हाँ, माइक ऑन है। कभी ये ऑन हो रहा है, कभी ऑन। आपके सामने ऑन है, सामने देखिए प्लीज। सवाल सर, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एम्स में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। एम्स वो संस्था है सर जिसमें तमाम नेताओं के, यहाँ बैठे कई नेताओं के, जजों के, सबके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं और उस FIR में ये बताया गया कि चीन द्वारा वो डेटा ब्रीच किया गया। सर, अभी हमने गलवान से लेकर तवांग तक चीन का दुस्साहस देखा। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये है कि एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा रखा गया कि चीन के साथ हमें अपना सारा व्यापार बंद करके आर्थिक चोट चीन को पहुंचानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी का क्या जवाब। नो, क्वेश्चन 141 प्लीज। ये क्वेश्चन नहीं है मिस्टर राघव चड्ढा, आई एम नॉट अलाउइंग इट, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 141 माननीय एस निरंजन रेड्डी। सर, आई आस्क क्वेश्चन 141। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, as nano fertilizers represent a major breakthrough in terms of efficiency, the question I have for the Honorable Minister is, because this is based on preliminary experimental trials, is further research studies being continued for confirming the results of the beneficial use of nano fertilizers and whether increased production of nano fertilizers are going to be linked to such confirmation from further studies. माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनो फर्टिलाइजर का रिसर्च हुआ और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन पर आने के पहले उसका अनेक टाइप का उसके ऊपर बायो सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी की गई है। डिटेल अध्ययन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उसको अनुमति दी गई है। हमारे सारी बॉडी के द्वारा जो रिसर्च को अनुमोदन करती है, सब बॉडी के द्वारा रिसर्च करने के बाद ये रिसर्च हुआ है। माननीय सदस्य को
मेरा सुझाव है कि इंडिजिनियस रिसर्च देश के किसानों के लिए है और दुनिया भी उसके प्रति देख रही है। बिना कारण से हमारे देश में उसके सामने क्वेश्चंस खड़ा करके दुनिया की कोई लॉबी को अपॉर्चुनिटी ना दे दे, ताकि वो लोग हमारी नैनो फर्टिलाइजर के सामने उंगली उठाए और हमारी रिसर्च अप्रूवल बॉडी के सामने उंगली उठाए। उसके बाद डिटेल में ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स सभी पर और ऑर्गेनिज्म पर उसकी क्या इफेक्ट होती है, सारा डिटेल स्टडी करके वो मार्केट में लाया गया है। एक बार तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बॉडी के द्वारा, माननीय मंत्री जी आप नैनो यूरिया ला रहे हैं तो क्या है नैनो यूरिया? यूरिया का स्मॉल पार्टिकल वो हवा में उड़ता उड़ता जाएगा, 10 किलोमीटर दूर जाएगा, वहाँ इफेक्ट करेगा। मैंने कहा क्या है वो? तो कि नाइट्रोजन। मैंने कहा हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ उड़ेगा, कहाँ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चंस करने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का इंडिजिनियस किसानों के लिए बहुत बड़ा रिसर्च है, दुनिया भी उसकी स्टडी करे और दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें सप्लाई करो, आप नैनो का प्लांट हमारी कंट्री में लगाओ। ऐसा डेवलप्ड कंट्री भी आज हमारा नैनो यूरिया के रिसर्च के सामने देख रही है। हमारा इंडिजिनियस रिसर्च हमारे देश की संपदा है। धन्यवाद। Second supplementary. Sir, I did not want to raise any doubts or questions. I would want to compliment the government on this major breakthrough. I use the word major Please breakthrough. put your question. I just want to clarify that. Having clarified, now since this is such an important breakthrough that India has achieved, I want to ask the Honorable Minister, do we intend to diversify and use this technology for other fertilizers other than urea? And are we increasing the stepping up of this nano fertilizer usage in the country? Thank you. थैंक यू माननीय सदस्य। आपने जो प्रश्न पूछा वो सही है कि क्या हम दूसरा फर्टिलाइज़र के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उसका प्रयोग करना चालू किया है। कई इंडियन कंपनी और इंडियन साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हैं। नैनो डीएपी बन के अभी वो इंस्पेक्शन के स्टेज पे है, रिसर्च उसका ऑलरेडी हो चुका है। हमारा ड्रग्स कंट्रोल, हमारा फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में लाने के लिए जो पैरामीटर में से उसको पास होना है उसका स्टडी चल रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में नैनो डीएपी भी आएगा, नैनो जिंक भी आएगा, नैनो सल्फर भी आएगा और भारत के फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति, विश्व के फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति इंडिया से होगी। ऑनरेबल आर गिरिराजन। Respected sir, thank you sir. In Tamil Nadu, whether the union government have any plan to operate new fertilizer plant near delta districts, which is useful to the Kaveri Delta agricultural zone in Tamil Nadu? I know the answer from the minister through you sir. Thank you. Thank sir. you. माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी एक फर्टिलाइज़र प्लांट भारत सरकार का वहाँ मद्रास फर्टिलाइज़र लिमिटेड चल रहा है और नैनो यूरिया का प्लांट भी हम मद्रास फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी में लगाना चाहते ताकि वहाँ भी नैनो यूरिया का प्रोडक्शन। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल बोंडे। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इफ्को ने नैनो यूरिया का प्रोडक्शन किया, उसका तो अभिनंदन करता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र और इतर पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज है, उनके माध्यम से नैनो यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा के सभी किसानों को उसका लाभ मिले और एक्सपोर्ट भी हो सके, उसकी पॉलिसी क्या है? सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, इफ्को ने नैनो यूरिया का रिसर्च किया और उन्होंने उसका प्रोडक्शन एक प्लांट इफ्को कलोल से चालू किया। उसके अलावा इफ्को के द्वारा ही फूलपुर यूपी में प्लांट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो 6 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष बनाएंगे। उसके अलावा उस एक दूसरा प्लांट इफ्को लगा रहा है ओनलम में, पंजाब में भी लगा रहा है, झारखंड में भी लगा रहा है, आसाम में भी लगा रहा है और विदेश में भी कई कंट्री की ओर से डिमांड आई है, लेकिन उसके पर विचार चल रहा है। और आरसीएफ और एनएफएल दोनों भारत सरकार की कंपनी है, दोनों कंपनी ने भी अपना नैनो यूरिया का प्लांट लगाने के लिए चालू कर दिया है। मैंने इफ्को के साथ एक मीटिंग कोऑर्डिनेट की, मैंने कहा कि कोई प्राइवेट सेक्टर भी नैनो यूरिया का प्रोडक्शन करना चाहे तो आप उससे रॉयल्टी लेके उसको प्रोडक्शन करने के लिए अनुमति दे दीजिए।
तो इफ्को ने तय किया है कि भारत सरकार के कोई पीएसयू प्लांट लगाएंगे उसके पास कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई लगाना चाहेंगे तो रॉयल्टी लेके वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे 2 कंपनी के साथ ऑलरेडी इफ्को ने एमओयू कर लिया है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर उसका प्रोडक्शन कर सके। आज के दिन में कुल 1 प्लांट चालू हो चुका है और 2025 तक ऐसे 8 प्लांट चालू होने के लिए तैयारी कर चुके हैं और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल का उत्पादन देश में इंडिजिनियस होगा, जो हमारा देश की यूरिया को वो रिप्लेस करेगा। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यूरिया पर बात हो रही है, खाद पर यहाँ, क्या आपके संज्ञान में ये है कि 20 नवंबर 2022 को सीहोर के ढाबला में शिवनारायण मेड़वा और 24 नवंबर 2022 को छतरपुर मध्य प्रदेश की बीजावर कृषि मंडी में दयाराम अहिरवार, बुंदेलखंड में भोगीपाल और महेश कुमार बुनकर, इन सब की मौत खाद की लाइनों में लगने के कारण हुई। लगातार इतना खाद को लेकर इतनी लंबी लाइन है कि लाइन में लगे लगे इन लोगों की मौत हो गई। तो बुंदेलखंड का पूरा इलाका और मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश खासतौर से, इन इलाकों में जो खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोग लाइनों में लगे लगे मर जा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्लान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे प्लीज आपस में नहीं, आपस में बैठकर बात ना करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जगह पे राजनीति का केंद्र किसान को ना बनाए। किसान राजनीति का केंद्र बना के राजनीति करना उचित नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, बोर्डिंग के लिए लाइन होती है कि नहीं होती है? आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, लाइन होगी कि नहीं होगी? कोई जगह पे खाद उपलब्ध है तो क्या एक साथ में एक टोला अंदर घुस जाएगा और खाद ले लेगा? लेने के लिए लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा भाई, वो तो शिष्टाचार होना। दूसरा देश में कोई जगह पे मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद, हाँ साहब, ये हो सकता है कि कई गोडाउन में खाद एक दिन के लिए ना हो और रैक आती होती है तो उपलब्ध हो जाए। और हम कोई भी स्टेट ने जितना भी, उसमें हमने कभी राजनीति नहीं की है। जिस गवर्नमेंट ने, अभी यहाँ सम्मानीय सदस्य उपस्थित है, मेरे पास आए हुए कि मंत्री जी हमारे यहाँ खाद जरा थोड़ी सी किल्लत है, तुरंत ही उन्होंने कहा हो कि 24 घंटे में रैक पहुंच जाएगी, पहुंच रही है। हर दिन 70 रैक किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चल रही है। देश में खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी 1 दिन 2 दिन के लिए कोई जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि देश में खाद की कमी है। दूसरा, आप सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल करें, कर सकते हो, लेकिन आप एक उर्वरक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, इतना रोबस्ट और इतना सरल डैशबोर्ड है, उस पर जाके आप देख सकते हो देश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना खाद पड़ा हुआ है, यूरिया, डीएपी, एनपीके, कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसके पास डिटेल्ड डेटा है, वहां ही आपको मिल जाएंगे। कोई स्टेट से मुझे कॉल आता है तो मैं तुरंत ही माननीय कृषि मंत्री स्टेट को कहता हूं कि साहब आपके यहाँ डैशबोर्ड ओपन करके देख लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं वहां इतना खाद ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये ओपन एक्सेस है, आप देख सकते हो उसको, और उसके आधार पर आप तय करें कि कोई स्टेट में खाद है कि नहीं है। मैंने तो बहुत क्लियर रखा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि स्टेट में कोई हर समय में 1-2 लाख मैट्रिक टन खाद एक्सेस रखता हो, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मुझे तो कहेंगे कि आप ये रैक पॉइंट पर रैक पहुंचाइए, तो मैं ये रैक पॉइंट पर रैक पहुंचा देता हूं, सरकार रैक पॉइंट पर रैक पहुंचा देती है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनल सेल करने की जिम्मेवारी इस स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी मिनिस्ट्री के बीच में बहुत रोबस्ट सिस्टम बनी हुई है। इसलिए कोई भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट हो, ओपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट हो, किसान किसान है, और किसान के लिए खाद उपलब्ध कराना हमारे लिए पॉलिटिकल कभी नहीं होता है, और डिमांड पर होता है, हम उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 142 माननीय लुइजिनो जोयाकिम फेलेरो, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। सर, a statement laid on the table of House. Honorable G.K. Vasan. Sir, I'm happy that the number of seafarers employed has gone up to 2,44,063 number in the year 2022 on national and international fleet. At the same time, sir, tonnage of Indian flag ships has reached 13.6 million tons. Definitely, sir,
It should have helped seafarers employment opportunities, sir. I congratulate the ministry and minister for that, sir. Please At the question. very same time, sir, very pointed question to the honorable minister. Psychological assistance is very much need in the distress for seafarers. An enhancement of the skill development of seafarers are very important. What are the steps taken by the honorable minister for this important subject? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज जो सवाल नाविकों के सिलसिले में इस हाउस में लाया गया है, मैं पहले तो संसद जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सी फेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ाने में वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। तो उनकी कल्याण के लिए जो योजना बनाई गई है उसको भारत सरकार की द्वारा निष्ठापूर्वक लागू किया गया है। तो हमारी आदरणीय संसद जी ने जो सवाल की है, उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी मोटिवेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या प्रोग्राम ले रखी है, इस पर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। टीम बिल्डिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम conducted for cadets and faculty of pre-C MTIs, amount spent nearly 20 lakhs, estimated number of seafarer and faculty benefited hundreds. So this is how we impart the training. Psychologically, we do like motivate them so that they feel always fresh and energetic. And all others like, program that is included in the skill development that I want to mention just 2 or 3. That is skill enhancement program, certificate of competency, contribution for National Maritime Day, celebration, e-learning for competency courses with help of different agencies, and e-learning for modular courses. So this is how we do impart training to the seafarers. Thank you. Question number 143, Honorable A. Rahim. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, my question regarding the SARFAESI Act. Section 31 clause 1 provides that the provisions of this Act shall not apply to any security interest created in agricultural land, and the courts have subsequently held that plantation will not come under the purview of the Act, agricultural land. There are many cases of taking possession of the only house of the marginal creditor has been reported recently. In these circumstances, my question is that, shall the government consider amending the provision of the Act in this spirit to exempt security interest created upon sole dwelling place? Thank you. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सभागृह को कि सरफेसी एक्ट के एग्रीकल्चर लैंड के लिए लगता नहीं है सिर्फ, और दूसरा जो सरफेसी एक्ट में है जो 1 लाख के नीचे अगर लोन है तो लगता नहीं है। अभी सदस्य ने जो क्वेश्चन दिया है कि एग्रीकल्चर के लिए और पौधे लगाने के लिए, तो उसी को भी ऐसा गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं है नया अमेंडमेंट करने का, लेकिन बताना चाहता हूँ। Second supplementary. So government kindly consider this amendment. This is my Please. request. Then my question, the second supplementary question is that there are many reports forthcoming on many defaults resorting to death by suicide due to their disability in servicing the debt. So, in the light of COVID-19, especially in the light of COVID-19 related financial struggle of many of the citizens in the country, is there any proposal to increase the number of the months under the SARFAESI Act to declare one's account as NPA? सर, मैं आपको ये माध्यम से बताना चाहता हूं कि ड्यूरिंग कोविड-19 द आत्मनिर्भर भारत के अंदर अलग अलग सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने डिक्लेयर किए थे।
तो जो जो सुविधा है वो सुविधा पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ, MSME के लिए 3.5 लाख या 4 लाख करोड़ तक सुविधा दी थी। वैसे ही हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी कोविड के अंदर हॉस्पिटलिटी के लिए 50,000 करोड़ रखे थे। तो अलग अलग सुविधा के माध्यम से कोविड के अंदर मदद किया गया है। With COVID related issue which leads to any kind of problem in the repayment was addressed at that time itself, sir, by having very clearly brought about the announcement of a moratorium and also action not be taken for problems which has exclusively arisen out of COVID. Prior to that, if there's been an NPA, or prior to that, if there's been any claim which is being picked up, or well after the moratorium has been lifted, if there's been action being taken, which is not due to COVID, cannot be covered here. But the fact remains that during the COVID problem which arose and action being taken during the COVID were all covered by the moratorium which was issued, and no action has been taken on COVID-driven problem or during the COVID phase. So the suggestion made by the honourable member, therefore, I would think is null and void. Thank you. श्रीमती रंजन जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि विगत 3 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में 1000 करोड़ से ऊपर के कितने ऋण दिए गए और कितने ऋण की वापसी वसूली हुई है, क्या इसका ब्यौरा देंगे? धन्यवाद। क्वेश्चन माननीय सभापति महोदय, ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 100 करोड़ के ऊपर कितना लोन दिया है और उसका रिकवरी कितना है इसके बारे में है। अगर सदस्य जानना चाहते हैं 1000 करोड़ के ऊपर तो उसको सूची में उनको प्राप्त कर दूंगा। धन्यवाद आपको। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन 144 श्रीमती गीता एलायस चंद्रप्रभा। माननीय जी, माननीय फर्स्ट मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में कोई गरीब बिना दवा से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए, उसमें से निकली हुई ये स्कीम है। ये जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश में सस्ती और क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। डेली आज 8900 से अधिक देश में जनऔषधि केंद्र ओपन किया गया है। ये जनऔषधि केंद्र पर जेनरिक सस्ती दवाई लेने के लिए डेली पर डे 20 लाख से अधिक लोग वहां आते हैं, सस्ती दवाई लेते हैं और उसका खर्च उससे बहुत बच जाता है। और माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में आप खोलना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा मॉडल हमने बनाया है जिस मॉडल में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जनऔषधि केंद्र खोलना चाहे तो उसके पास फार्मासिस्ट हो और प्रीमाइसिस हो, और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हम उसको अप्रूवल देते हैं और 20% कमीशन भी देते हैं। कोई भी व्यक्ति जनऔषधि केंद्र खोलना चाहे तो अवश्य अप्लाई करें। जनऔषधि केंद्र खोलने से उसको 20% आमदनी होगी, यानी कि उसकी इनकम भी होगी, गरीब और मध्यम वर्ग की सेवा भी होगी। इस दृष्टि से जनऔषधि केंद्र देश में बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड सप्लीमेंट्री दूसरा सवाल मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या महिलाओं को जन औषधि केंद्र खोलने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जनऔषधि केंद्र ओपन करे तो एकदम सस्ती दवा होने के नाते उसकी इनकम भी कम होती है। मार्केट में कोई मेडिसिन की एक ट्रिप, कालपोल की एक ट्रिप फॉर एग्जांपल 10 रुपीज में मिलती है तो वहाँ 2 रुपीज में मिलती है, तो सस्ती होने से उसका कमीशन भी कम होता है। स्वाभाविक तौर पर वो तो परसेंटेज के आधार पर होगा। तो हमने तय किया है कि कोई जनऔषधि केंद्र को अप्रूवल दी जाए तो उसको 5 लाख रुपया तक प्रति महीने 15% उसको 15,000 रुपीज 20,000 रुपीज हम जो सेल करेंगे उसको हम देते हैं, ताकि उसकी इनकम बढ़े, तब तक वो सर्वाइव कर जाए। हमने ये निर्णय लिया है कि कोई महिला जनऔषधि केंद्र ओपन करना चाहे, कोई SC ST के कैंडिडेट जनऔषधि केंद्र ओपन करना चाहे,
कोई हिमालयन रेंज या तो जिसको जो इस क्षेत्र के स्टेट है हिमालयन रेंज के, वहां कोई जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहे तो 5 लाख प्लस 2 लाख हम एडिशनल देते हैं, ताकि ऐसे लोगों को भी जन औषधि केंद्र ओपन करके अपनी इनकम करने का अवसर मिले, गरीबों की सेवा करने का अवसर मिले। Now it's 1 o'clock. Honorable members, House stands adjourned till 2 p.m.